Okay. So today we'll start with something called as indices. Okay. So before starting, just tell me something. If we have 3 plus 3 plus 3 plus 3, how can I write it in short? 3 into 4, correct? 3, 4 times. Right. So similarly, if we have 3 into 3 into 3 into 3, then we can write it in short using indices. That is, we can write it as 3 to the power 4. Okay. So can I say this multiplication is like repeated addition, right? Fine. So similarly, can I say this indices is like repeated multiplication? Okay, fine. So in general, in this indices, in this 3 raised to 4, or in general in any a raised to b, how do we read it? A raised to b, or a to the, correct, a to the power b, right? In this a is called as, do you know what? Base, correct. And this b is called as index or power. Okay, fine. So we just have to see some basic rules of indices and how to solve these questions so that logarithm पे हम जा पाएंगे. Logarithm and indices are linked together. ठीक है. So you can just note this down in formula notebook. I mean, it is easy. पता होगा, स्कूल में तो किया होगा, right? Okay. Okay, fine. So just tell me like a few values. For example, if I write 2 raised to 3, how much is it? 8. 2 into 2 into 2, so 8, correct. If I write 5 raised to 4, how much is it? No, no. 625 is correct. We can write as 5 into 5 into 5 into 5, which is nothing but 25 into 25. That is 625, 25 square. Okay. But if I give something like, let's say 6 raised to 3.3, can we find it directly? No, right? There's no way to find this directly. Can we multiply 6 into 6 into 6 3.3 times? No. So can I say this definition that indices is like repeated multiplication? This will not always work. This will not work in cases like this 6 raised to 3.3. We cannot do anything for that. कि हाथ से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं उसको. ठीक है, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है फिर उसको आगे जाके. Okay. So based on this indices, we have to see some rules or properties. Properties of indices. This will be like basic of coming chapters because हर एक chapter में indices तो कहीं ना कहीं पे आएगा ही, square, cube, square root, something. So you have to be familiar with it. So let's see some properties of indices. First of all, if I write just basic first definition of indices, if I write a raised to b, what does it mean? A into a, how many times? B times, correct. So this is just basic definition. अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं धीरे धीरे उसको. Tell me, what is, if I write a raised to 1, how much will it be?
A, because 5 raised to 1 means 5 into 5 one time, that means 5 only, right? A raised to 1 is A, okay. If I write 1 raised to something, how much will it be? 1, because 1 into 1 into 1, 8 times is still 1, okay, ठीक है. अब fourth, अब देखो सपोज मैंने ऐसा लिखा 3 into 3 into 3 into 3, this is how much? 3 raised to 4. This is how much? 3 raised to 2. If I multiply this first equation by second equation, on left hand side we'll have how many threes? 6 threes, right? Multiply किया तो 6, ये 4 और ये 2 आ जाएंगे, और इस साइड को, करेक्ट, गुड, 3 raised to 4 and 3 raised to 2 आ जाएगा. So that is like 3 raised to 6 is equal to 3 raised to 4 into 3 raised to 2. That means powers are added, correct. तो पावर्स ऐड हो रहा है, तो इन जनरल इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या फिर? इफ वी हैव a raised to m and a raised to n, that is 3 raised to 4, correct, that will be a raised to m plus n is equal to a raised to m plus n. So this will be very much useful later. A raised to m into a raised to n is a raised to m plus n, correct. क्या? तो अच्छा, यहाँ से आ रहा है क्या? यहाँ पे तो हाँ, तुम्हारे ऐसे थोड़ा सा आ रहा है, बट दैट इज ओके, मतलब तुम्हारा सुनाई दे रहा है मुझे फिर भी. हाँ, ओके ओके, ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी समझी? ओके. फिर अगर यही तो लेके इसको 1 बोला, इसको 2 बोला, एंड व्हाट इफ आई डू फर्स्ट, हाँ करेक्ट, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या आएगा? कितने 3 बचेंगे? करेक्ट, मतलब दो, 2 3s बचेंगे वहां पे, क्योंकि दिस डिवाइड बाय दिस किया तो दो कैंसिल हो जाएंगे, एंड इस साइड को बचेगा 3 raised to 4 अपॉन 3 raised to 2. दिस इज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 raised to 4 अपॉन 3 raised to 2. दो 3 है ना यहाँ पे, तो 3 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है. तो ये कैसा है, कहाँ से आया स्क्वायर? करेक्ट, इससे ये माइनस करके, क्योंकि ये 4 3 में से ये 2 3 कम हो गए, ये न्यूमरेटर में से ये डिनोमिनेटर वाले 3 कम हो गए, तो कहना राइट प्लस a raised to m डिवाइडेड बाय a raised to n होगा, तो दैट विल बिकम व्हाट? a raised to m minus n, करेक्ट. ये नीचे का और कम हो जाएगा, उतने a's कैंसिल हो जाएंगे उससे. फाइन. सो सेकंड प्रॉपर्टी इज दिस, a raised to m upon a raised to is a raised to m minus n. ठीक है. ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई, a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n, and a raised to m into a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n. Then अब हमने ये देखा है, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी एनीथिंग raised to 0? 1, why 1? Can you try to prove? 1 होता है, करेक्ट है. why 1? पता नहीं, ओके. why not 0? a को एक भी बार नहीं मल्टीप्लाई किया, a raised to 0 मतलब क्या? a को एक भी बार मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो 1 कहां से आ रहा है फिर? why not 0? अच्छा, याद कर लिया, ओके. ओके, मुझे बोलो, कैन आई राइट a raised to 0 as a raised to let's say 6 minus 6? फाइन. अब ये वाली प्रॉपर्टी उल्टी अप्लाई करके क्या होगा? करेक्ट. क्या होगा बोलो? करेक्ट, करेक्ट, फाइन, एंड देन दिस विल गेट कैंसल्ड, सो 1 बचेगा, दैट इज व्हाई एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1. फाइन. दैट मींस एनीथिंग रेज़ टू 0 is 1, कि 1000 रेज़ टू 0 किया तो दैट इज आल्सो 1. 1 रेज़ टू 0 is also 1. कैन यू टेल मी व्हाट इज 0 रेज़ टू 0? इज दैट आल्सो 1? ऐसी सेम चीज ट्राई करके देखो इस पे, 0 रेज़ टू 0 पे. करेक्ट, क्या आएगा? 0 रेज़ टू 6 minus 6.
मतलब 0:6 अपॉन 0:6 मतलब 0/0। ये 1 होता है क्या 0/0? नहीं, 0 भी होता है क्या लेकिन? नहीं, करेक्ट, नॉट डिफाइंड और इंफिनिटी, सो 0:0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो यहाँ पे a कैनॉट बी 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, बट 0:0 इज नॉट डिफाइंड। सो ये और दो प्रॉपर्टीज मिल गए इससे हमें। ओके, और एक प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर बाकी के प्रॉपर्टीज देखने से पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? तो और एक प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी हमें उसके पहले। सपोज आई हैव 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर का मैंने लेट से रेज टू 4 किया, तो इसका मतलब कहने से 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। बट मतलब ही हमने एक प्रॉपर्टी अभी देखी कि a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज व्हाट? करेक्ट, a raised to m plus n. So this is 3 to the power 2, 3 to the power 2, 3 to the power 2, तो वो सब पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड। करेक्ट, एंड कहने से 2 plus 2 plus 2 plus 2 मतलब कहने से 4 times 2, 4 times 2 मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, करेक्ट? तो इस प्रॉपर्टी को कैसे लिख सकते हैं फिर? a raised to m ब्रैकेट raised to n लिखा, तो हाउ शुड आई राइट इट? करेक्ट, a raised to m into n. So this is one more basic property. A raised to m into a raised to n is a raised to m bracket raised to n is equal to a raised to m into n. ठीक है, ओके। सो बेसिक प्रॉपर्टीज जो तीन हमें सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हमेशा आर a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n, then a raised to m upon a raised to n is a raised to m minus n, and a to the power m bracket to the power n is equal to a raised to m into. So based on these three properties, let's try to solve some questions. So हाँ, ये दूसरे बुक में लिखो, यस। कैन यू ट्राई दिस वन? x इज इक्वल टू 4 वो भूल जाओ अभी के लिए, उसको सिंप्लीफाई करो भाई। हाँ हाँ, ओके करो। x इज इक्वल टू 4 को अभी तक साइड को रखो, पहले सिंप्लीफाई करो, फिर x को 4 रख दो, दैट बी इजियर। 3 to the power minus 1, okay, let's try. This will be what? 2 and x raised to half and 3 and x raised to minus 1. This is a raised to m into a raised to n, so the powers will be added, right? So what will it be? 2 into 3 is 6, and ये x के पावर्स का क्या हो जाएगा बोलो? ऐड मतलब हाफ प्लस माइनस 1 में इज हाफ माइनस 1, ठीक है? तो 6 into x raised to half minus 1 is what? करेक्ट, माइनस हाफ, ये 2 यहाँ पे लेंगे, 1 minus 2 by 2, that is 6 into x raised to minus half. ओके, अब x को क्या रखना है हमें वहां पे? 4, so it will be 6 into 4 raised to minus half, ठीक है? अब 4 को हम किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या?
2 square. So can I write this as 6 into 2 square raised to minus half? फिर अब हमारी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, अभी जो a रेस टू m ब्रैकेट रेस टू n वाली, क्या हो जाएगा, 2 रेस टू क्या हो जाएगा वो 2 इंटू माइनस हाफ, दैट इज 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 6 इंटू 2 रेस टू माइनस 1। ठीक है, हाँ हाँ करेक्ट। अब हमने इसकी प्रॉपर्टी नहीं देखी है, बट इससे हमें एक समझ सकता है। लेट्स ऐड वन मोर थिंग हियर, इफ वी गेट समथिंग लाइक दिस a रेस टू माइनस m, देन जैसे कि यहाँ पे आया 2 रेस टू माइनस 1, कैन आई राइट इट एज a रेस टू 0 माइनस m? हाँ, क्या हुआ क्वेश्चन? हाँ हाँ, हम्म, नहीं 1/3x किया तो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि 3 नीचे जाएगा, क्या बोलो उसमें से 3 को पावर नहीं है ना। हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे अब क्या करना चाहिए, एक तो मुझे बोलो a रेस टू माइनस m है, तो हाउ कैन आई राइट इट a रेस टू 0 माइनस m, देन कैन आई राइट इट एज a रेस टू 0 अपॉन a रेस टू m? a रेस टू 0 कितना होता है लेकिन 1, so this will be 1 upon a raised to m। तो अगर निगेटिव पावर है तो हम उसको डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी निगेटिव पावर है, तो कैन आई राइट इट एज 6 इंटू 1 अपॉन 2 रेस टू 1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बोलो? 3 इज करेक्ट, 6 अपॉन 2। ठीक है, तो 3 समझा? यस, तो ये प्रॉपर्टी ऐड कर दो, a रेस टू माइनस m कैन बी रिटन एज 1 अपॉन a रेस टू m। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें करने हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी, यहाँ तक हुआ 6 तक। ठीक है, 7। Now, see, if we have something like this, a raised to 1 upon m, then generally there is a symbol for this. Generally, it is written as, correct, no, mth root of a. Okay, how do we write? Mth root of a. So, if we see somewhere something like this, fifth root of 32, then we can write it as 32 raised to 1 by 5. Okay. A raised to 1 by m, it can be written as. Similarly, if we have square root of 4, then we can write it as 4 raised to what? करेक्ट, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब वो 2 होता है, so 1/2, रेडिकल साइन बोलते हैं इसको। ओके, then let's try some questions now. Can you try this? Simplify. Basic rules. इंडा से स्कूल में हुआ है तुम्हारा पहले? ओके, बट ये रूट का साइन वगैरह हुआ है क्या पहले? 10th में था? अच्छा, मतलब रूट्स एंड क्यूब रूट्स वगैरह। ओके, मैं भी सॉल्व करता हूँ स्क्रीन पे, तुम साइमल्टेनियसली मुझसे करो। लेट्स सी।
ओके, लेट्स से ए रेस टू क्या आएगा, 13 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 2, राइट, अपॉन 10। क्या है तुम्हारा आंसर, ए टू द पावर 57 अपॉन, हाँ 10 इज करेक्ट, फाइन। This will be a raised to 65 minus 8 by 10. That will be a raised to 57 by 10. Okay. Then can you try to simplify this? 243 to the power 1 by 5. कि वो 1 by 5 कैंसिल करना है तो कहने से और एक पावर आना चाहिए अंदर कुछ तो 240, हाँ 243 को कुछ स्प्लिट कर सकते हैं क्या? ट्राई। ये आंसर आएगा, ओके। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, 243 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, करेक्ट। इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड किया तो क्या आता है, 8 1, करेक्ट। वापस 3 से कर सकते हैं तो 27, अगेन 3 9 3 3, तो 5 बार 3 मतलब वी कैन राइट इट एज 3 रेज टू 5, 3 into 3 into 3 5 टाइम्स रेज टू 1 by 5। तो वो पावर्स मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, 5 into 1 by 5, सो दैट विल बी 3, करेक्ट। ठीक है, देन ट्राई दिस। अगेन कुछ तो सिंपल छोटे बेस में लाने का ट्राई करना पड़ेगा हमें। फाइनल आंसर, ओके लेट्स चेक। 16 को कैसे लिख सकते हैं, करेक्ट, 2 to the power 4 because 2 into 2 4 times is 16, the raised to it is 1 by 4। ओके गलत हो गया, ठीक है। 32 को भी 2 से फैक्टर हो सकता है, 32 क्या आएगा, 32 को भी 2 से फैक्टर करके देखो, वही आएगा 16, मतलब 2 2 2 5 बार आएगा। देन 2 to the power 3 तो है ही, फिर नीचे 64 को क्या लिख सकते हैं, फाइनल आंसर, ओके 64 को क्या लिख सकते हैं नीचे, 2 to the power 6 is correct, फाइन, रेज टू हाफ, एंड 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2 raised to 3 by 2, ओके। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4 4 कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई होके, सो दैट विल बी 2 into 2 to the power 5 into 2 to the power 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 6 और हाफ मल्टीप्लाई होके क्या बचेगा, 3, so 2 to the power 3, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई होके क्या बचेगा,
3, क्योंकि ये 2 2 कैंसिल होगा, 2 टू द पावर 3। कैन आई से ये कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली। So this is 2 raised to 1 into 2 raised to 5, that is 2 raised to 1 plus 5, and ये माइनस हो जाएगा -3, that is 2 raised to 3, so 8 is correct। समझाए? ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको। राइट, सबको 2 के बेस में नहीं ला सकते यहाँ पे, तो थिंक केयरफुली। 16 can be written as 2 to the power 4 raised to half। 32 is what? 2 to the power 5, अभी देखा हमने, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 32 आता है। आंसर बच रहा है नो। ट्राई अगेन, केयरफुली ट्राई करो। हाँ रॉन्ग है, ट्राई अगेन। ओके, ये 6 टू द पावर 5 का क्या करेंगे बोलो? अच्छा वैसे निकाला उसको, 6 इंटू 6, फिर ओके, सो वी कैन राइट इट एज 2 इंटू 3 टू द पावर 5। ठीक है, फिर नीचे 64 इज 2 रेज टू 6 रेज टू 5 बाय 6, 9 इज 3 स्क्वायर का स्क्वायर, एंड फिर 3, एंड फिर 8 इज 2 का क्यूब, 2 रेज 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जो होता है कैंसिल करता है, ये यहाँ पे कैंसिल होगा, 2 रेज टू 2 बचेगा, ये यहाँ पे कैंसिल होगा, 2 बचेगा। इसको क्या कर सकते हैं हम, 2 इंटू 3 ब्रैकेट रेज टू 5 को, कैन आई ओपन दैट ब्रैकेट? मतलब फिर -6, नो स्टिल नॉट। ठीक है, लेट्स चेक। टू तो -6, अच्छा -6 बोल रहे हो? नो स्टिल नॉट करेक्ट। ओके, कैन आई सी ये जो ब्रैकेट है 2 इंटू 3 ब्रैकेट रेज टू 5, कैन आई राइट इट एज 2 रेज टू 5 इंटू 3 रेज टू 5? बिकॉज वैसे भी 2 इंटू 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 को 5 बार, 3 को 5 बार। तो फिर मुझे बोलो, कैन आई से इससे हमें और एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं हम प्रॉपर्टीज में, समथिंग लाइक दिस, कि अगर ऐसा है हमारे पास a इंटू बी ब्रैकेट रेज टू m, then can I open the bracket and write it as a raised to m b raised to m? तो ये प्रॉपर्टी ऐड कर दो प्रॉपर्टीज में, फिर यहाँ पे आगे जाते हैं तब तक। 6 6 कैंसिल होगा, 2 रेज टू 5, फिर 3 रेज टू 4, 3 एंड 2 रेज टू 3। तो अभी भी -6 आ रहा है, 2 रेज टू -6। ओके, अब देखो
स्क्रीन पे बोलो मुझे क्या क्या होगा, कैन एनीथिंग बी कैंसल्ड हियर? हाँ, और कहना चाहिए 3 to the power 4 एंड पावर 1 है, ये ऐड हुआ तो 3 to 5 होने वाला है। हाँ, तो ये दोनों और ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, फिर पहले ये 5 भी कैंसिल हो सकता है, और ये स्क्वायर और 1 मतलब ये 2 to the power 3 है, ये और ये भी कैंसिल होने वाला है, तो क्या बचता है आंसर? 1 इज द करेक्ट। तो और एक प्रॉपर्टी इससे मिली हमें, a इंटू बी ब्रैकेट रेस टू एम इज a रेस टू एम b रेस टू एम, पावर हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिर डिवीजन के लिए भी वर्क करेगा क्या ये? क्या होगा वो? हम्म, b टू द पावर n, करेक्ट। करेक्ट, तो ये दो प्रॉपर्टीज भी ऐड कर दो प्रॉपर्टीज में इंडाइसेस के। ओके, नाउ लेट्स ट्राई सम मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, अब बेस्ड ऑन ऑल प्रॉपर्टीज। एक बार सब प्रॉपर्टीज वापस देखते हैं। तुम मुझे बोलो अब, व्हाट इज a रेस टू m इनटू a रेस टू n? a रेस टू m प्लस n। व्हाट इज a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n? a रेस टू m माइनस n। व्हाट इज a रेस टू 0? 1, but what is 0 raised to 0? Not defined. What is a raised to m bracket raised to n? A raised to m into n. What is 1 raised to anything? 1. What is a into b bracket raised to m? Hmm. Correct. And we say a upon b bracket raised to m is? Hmm. Correct. And if we have mth root of a, so that means a raised to what? 1 upon m. Correct. And if we have negative power, then how do we convert it to positive power? Correct, by reciprocated. So take it to the denominator, 1 upon a raised to. So based on all these, let's try some questions now. अब एक तो ना जो सिंपल बेसिक नंबर्स है उनके पावर्स जनरली याद रखने चाहिए, हो जाते हैं। लाइक 2 के पावर्स क्या होते हैं मुझे बोलो? 2 रेस टू 1 इज 2, 2 रेस टू 2 इज 4, देन 2 का क्यूब क्या होता है? 8, 2 रेस टू 4 क्या होता है? 16, देन 2 रेस टू 5 32, 2 रेस टू 6 64, then 2 raised to 7 128, and 256, then 512 10, हाँ 1024 होगा ना? ठीक है, और 2048 होगा, 2048 गेम होता है ना वो, मोबाइल का। ठीक है, तो जनरली 2 के थोड़े से पहले पावर्स एटलीस्ट 128 टू 56 तक याद होने चाहिए, मतलब वो याद हो जाते हैं जनरली, बिकॉज फिर सॉल्व करना इजी हो जाएगा। 3 के भी एटलीस्ट पहले 3 4 या 5 पावर्स तो याद हो सकते हैं, लाइक 3 is to 1 is 3, 3 square is 9, 3 cube is 27, 3 raised to 4 क्या आएगा? 81 and 243। ओके, फिर बाकी नंबर्स के स्क्वायर्स और क्यूब्स याद रखे सिर्फ तो भी ठीक है, बाकी कैलकुलेशन हम करके देख सकते हैं। बट 2 और 3 बेसिक बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है, तो वो याद रखा तो अच्छा होगा। ठीक है, देन ट्राई दिस वन, सिंपलीफाई।
24 AD, करेक्ट। दिस 6 into 4 is 24, ठीक है। देन a वैसे ही रहेगा, b स्क्वायर वैसे ही रहेगा, c क्यूब वैसे ही रहेगा। ये b रेस टू माइनस टू को नीचे लिया तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा उसका, c रेस टू माइनस थ्री को भी नीचे लिया तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा, और d तो ऊपर ही रहेगा क्योंकि उसका पॉजिटिव ही पावर है। b स्क्वायर c क्यूब कैंसिल होके 24 AD इज करेक्ट, ठीक है, गुड। Try this. Also just solve here. क्या होगा वो? Is it a raised to m divided by a raised to n? क्या होता है वो? a raised to m minus n। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? x raised to minus 1 minus 1 by 3। So that is going to become positive। So 4 into x to the power minus 1 plus 1 by 3। So 4 into x to the power, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो minus 3 plus 1 by 3। तो ये आएगा देखो 4 into x raised to minus 2 by 3। आया? यस, नो? अच्छा, 4 को करके कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि x पता नहीं है ना हमें कितना है। हाँ, तो ये इसलिए रखना। क्या? हाँ, तो इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते हम क्योंकि x का वैल्यू ही पता नहीं है, तो इतना ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, ओके, एक चाहिए तो सिर्फ कर सकते हैं वो, x को नीचे ले सकते हैं पॉजिटिव पावर लाने के लिए, तो सिंप्लीफाई मतलब इतना करके रख सकते हैं हम, 4 डिवाइड बाई x रेज टू बाई 3। ओके, ट्राई दिस। ये केयरफुली करना पड़ेगा, बहुत सारे फ्रैक्शंस है। एक मुझे बोलो सर कि a को 4 पहले रखना चाहिए या एंड में रखना चाहिए?
एंड में, लेकिन मुझे बोलो अगर पहले 4 रखा ना तो शायद थोड़ा इजी होगा। ऐसा सोचो, देखो अगर पहले ही 4 रखा तो 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या हम? ओके करो ट्राई। आई विल आल्सो सॉल्व इट ऑन स्क्रीन, देन चेक। 4 raised to minus 7 by 3, 9 into 4 raised to minus 5 by 3, 4 raised to 3 by 2। ओके तुम करो सॉल्व, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मेरा। देन चेक द आंसर। 4 को वी कैन राइट एज 2 स्क्वायर, सो दैट विल बी 2 into 2 square raised to half, 2 square raised to 2 by 3, 6, and 2 square raised to minus 7 by 3 divided by 9 into 2 square raised to minus 5 by 3 and 2 square raised to 3 by 2। फिर इससे एक फायदा होगा कि ये 2 2 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा, एंड दिस विल बी 2 into 2 into ये मल्टीप्लाई होकर 2 raised to 4 by 3 into 6 into ये मल्टीप्लाई होकर 2 raised to 2 into minus 7 मतलब minus 14 by 3, then 9 into 2 raised to 2 and 5 मतलब minus 10 by 3 and 2 raised to 3। ठीक है, फिर कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह सब कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। 3 into 2 is 6, 3 into 3 is 9। फिर ओके लेट्स चेक। फिर ये 1 2 3, ये 2 और ये 2 क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ इतना बचा है। मैं चेक 2 raised to 4 by 3, 2 raised to minus 14 by 3 divided by 3 into 2 raised to minus 10 by 3, so that should give us 2 raised to, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे, ऐड मतलब 4 by 3 प्लस माइनस 14 by 3, और ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस माइनस 10 by 3, दैट इज गोइंग टू गिव अस, और नीचे एक 3 भी है, दैट इज गोइंग टू गिव अस 2 raised to 4 by 3 minus 14 by 3 plus 10 by 3 upon 3, that is 2 raised to 4 minus 14 plus 10, तो 0 आ रहा है, 2 raised to 0 by 3, 1 by 3 should be the answer। अलग आया ना तुम्हारा कुछ? 1 by 6, 6 कहाँ से आया, लेकिन 6 है ही नहीं कुछ में। कौन सा बचा है देखो एक बार, चेक। ओके क्या किया बोलो? 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 12, ठीक है, देन ऐड कर दिया, ठीक है। अगर ऐड कर दिया तो तुम्हारा आया होगा a रेज टू 1 by 2 plus 2 by 3 minus 7 by 3, राइट? मतलब वो नीचे का भी कर दिया उसमें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आया होगा 1 by 2 plus 2 by 3 minus 7 by 3 plus 5 by 3 minus 3 by 2, करेक्ट? ये उल्टे किए गए साइंस इसके, हाँ, क्योंकि ये नीचे का ऊपर जाने पर उल्टा हो जाएगा ना। चेंज इट, चेक इट, करो चेंज। वैसे क्या तो भी नो इश्यूज, लेकिन साइंस ठीक से करो सर। फाइनल आंसर शुड बी दिस, देखो स्क्रीन पे पूरा ओपन करो।
-1, ओके। लेट्स चेक। ये अब करेक्ट ये किया ना तुमने ऐसे? 2/3, ओके लेट्स चेक। ऐसा आएगा देखो, वो ऐड करने पर। तो फिर वो आएगा 12/9 इंटू ए रेज टू 3 + 4 7, और 3 + 4 + 10 एंड -14 -9। क्या होता है वो देखो। एक तो -14 + 4 ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, एंड 3 - 9 इज -6/6, ठीक है। तो दिस शुड बी 12/9 इंटू ए रेज टू -1, मतलब 12/9 इंटू 1/8। ए तो 4 है हमारा, तो 4 तो कैंसिल किया तो 4 1 3 1। कहाँ कहाँ से ले रहे थे टू, ऐसे ही? Okay, तो 1/3 would be the answer। दोनों वे से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर? ओके, सिंप्लीफाई दिस देन। ये क्वेश्चन वो पावर दोनों को जाएगा। तुम सॉल्व करो, मैं भी स्क्रीन पे सॉल्व करता हूँ, देन चेक द आंसर। दैट बी x रेज टू a रेज टू 3, मतलब x रेज टू 3a, y रेज टू -3b, x रेज टू -3a, y रेज टू -2a। निगेटिव पावर सब नीचे लिए, या फिर सबको ऐड कर दिया सिमिलर को। a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज a रेज टू m प्लस n, एंड y रेज टू -3b -2a। तो x रेज टू 0 बचेगा। नहीं, हम तो उससे कुछ कर नहीं सकते हम आगे, यही आंसर आएगा। चेक। अगर चाहिए ही तो उसका पावर पॉजिटिव करना है तो नीचे ले सकते हैं। आया, गुड, ओके, ठीक है। अगेन सिंप्लीफाई दिस। सिक्स्थ रूट है वो। सिर्फ मुझे वो सिक्स्थ रूट को कैसे लिखोगे बोलो, फिर यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। करेक्ट, एंड सिर्फ उसको a टू द पावर 4 भी कोई नहीं जाएगा। हाँ करेक्ट। तो ये पूरे ब्रैकेट को रेज टू 1/6 सॉल्व करते हैं। माइनस है, निगेटिव भी है वहाँ पे। x रेज टू 1 a रेज टू -2 बाय x रेज टू b।
ये भी 2/3 आता है 4/6 मतलब, सो दैट इज a raised to 2/3b minus 2/3b and x raised to 1 plus b. Got it? Okay, good. X raised to 1 plus b is correct. Fine. Okay, now this is a good one. Let's see if we can solve this. Find x. x find करना है हमें इस इक्वेशन से। सिर्फ इक्वेशन है तो सिंपलीफाई नहीं करना है। You have to find x. हाँ करेक्ट। x को एक साइड को लेके आओ, बाकी सब दूसरे साइड को लेके जाओ। इससे हमें और दो प्रॉपर्टीज मिलेंगे इंडाइसेस के। We'll see those. Root x can be written as x raised to half is equal to, ये भी ऐसे लिख सकते हैं, x raised to 1 into x raised to half full bracket raised to x. ये LHS में इनको ऐड किया तो क्या होगा? हाँ LHS हाँ करो करो। तो x raised to 1 plus 1 by 2 is equal to, यहाँ पे वैसा ही हुआ, x raised to 1 plus 1 by 2 raised to x. That should be x raised to, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 2 plus 1 3 by 2 is equal to x raised to 3 by 2 bracket raised to x. That will be x raised to 3 by 2 is equal to x raised to 3x by 2. So anything? फिर उसके आगे कुछ कर सकते हैं क्या? ओके, लेकिन एक बेटर ऑप्शन है क्या उससे, देखो ये स्टेप लिखेंगे ही नहीं लास्ट वाला, एंड वो जो ऊपर वाला है ना उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3x रेस टू 3 by 2 रेस टू 1 इज इक्वल टू x रेस टू 3 by 2 रेस टू x। करेक्ट, फिर ये बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा x और 1, तो x इज इक्वल टू 1। तो मुझे बोलो इतना भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, कुड वी हैव डन समथिंग लाइक दिस, कंसंट्रेट। यहाँ पे बोला x रूट x इज इक्वल टू x रूट x रेस टू x। हाँ, तो वहां से ही आंसर आ जाएगा, राइट? So that will be x root x raised to 1 is equal to x root x raised to x। इसका मतलब x is 1। तो फिर इससे और एक प्रॉपर्टी हमें मिलेगी क्या इंडाइसेस की, जो हम नोट कर सकते हैं। कितने लिखे हमने प्रॉपर्टी, नंबर कहा तो हुआ है? हाँ ठीक है, लेकिन 10 हुए होंगे शायद। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगर कोई और एक्स्ट्रा नोट किया या फिर बुलेट पॉइंट्स किया तो भी नो इश्यूज। जो भी है नेक्स्ट, कैन आई राइट समथिंग लाइक दिस, इफ वी हैव, हाँ, a to the power m, हाँ करेक्ट, करेक्ट।
if a to the power m is equal to a to the power n, then m is equal to n. फिर और एक प्रॉपर्टी भी उल्टी भी बिल्ड कर सकते हैं हम. Will this work? Tell me. If I write something like this, if a to the power m is equal to b to the power m, then a equals b. बट ये प्रॉपर्टी हमेशा नहीं वर्क करेगी. हमेशा क्यों नहीं वर्क करेगी? देखो मुझे बोलो 3 टू द पावर 2 क्या आता है? 9. बट -3 टू द पावर 2 भी क्या आता है? 9 ही आता है. -3 इंटू -3 भी +9 ही होता है. तो यहाँ पे a और b सेम नहीं होंगे. तो कैन आई से इफ a टू द पावर m इज इक्वल टू b टू द पावर m, and then a is equal to b if their sign is same. अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव है, तो फिर वो इक्वल होंगे. अदरवाइज हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो इक्वल है. ये प्रॉब्लम तभी आएगा स्क्वायर इवन पावर के लिए. प्रॉब्लम आएगा ऐसे क्योंकि ऑड पावर अगर लिया हमने 3/3, तो वो -3/3 होता ही नहीं है, तो 3/3 रहता है सिर्फ, राइट. तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इवन वाले पावर्स के लिए आएगा. अदरवाइज दिस विल जनरली वर्क. फॉर ऑड पावर्स इट इज ट्रू. डन. कैन वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ करो. इफ देयर इज साइन इज सेम से भी बेटर क्या हो सकता है? आप ऐसा भी नोट कर सकते हैं कि इफ power is odd, this will always be true. This will be true. Correct. If power is even, then a is equal to minus b is also possible. ये उल्टा भी हो सकता है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर. ट्राई दिस. यू हैव टू फाइंड के फाइंड करना है उसमें. खुद से करो. मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ तब तक. So therefore root 9 is 3. 3 raised to minus 7 is equal to root 3 मतलब 3 raised to half bracket raised to minus 5 is equal to 3 raised to k. Then 3 raised to minus 7 into 3 raised to minus 5 by 2 is equal to 3 raised to k. So that will give us power side किए तो 3 raised to minus 7 minus 5 by 2 is equal to 3 raised to k. So 3 raised to multiply किया तो minus 14. Correct. Minus 14 minus 5 by 2 is equal to 3 raised to k. So therefore 3 raised to minus 19 by 2 is equal to 3 raised to k. Correct. So base is same, so power is same. So k is minus 19 by 2. Good. ठीक है. So k is minus 19 by 2. Then we'll solve all this question, but before that let's solve some specific ones. Can you try question numbers? पहले तो सिंपल वाले क्वेश्चन नंबर्स 1 to 7. Take some time, solve, then we'll check.
जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं पॉज करो, सॉल्व करो और फिर प्ले करो, so that will solve one screen. तो चलो चेक करते हैं। पहला 4 इंटू एक्स रेज टू माइनस 1/4, सी आंसर आया। 4 डिवाइडेड बाय 1, अच्छा क्या लिखा फिर? हाँ, क्योंकि उसमें 4 को पावर नहीं है तो 4 नहीं नीचे जाएगा, सिर्फ ये पार्ट नीचे चला जाएगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ 8 रेज टू 1/3, 8 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू 3 रेज टू 1/3, करेक्ट, सो दैट विल बी 2, क्योंकि 3 3 कैंसिल होगा, 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। देन वैल्यू ऑफ 2 into 32 raised to 1/5, 32 can be written as what? Correct, 2 to the power 5 to the power 1/5, फिर 5 5 cancel, 2 into 2, so that is 4, then 4 divided by 32 to the power 1/5, मतलब वापस 2 to the power 5 to the power 1/5, वापस 5 5 cancel, तो 4/2, 4/2 is 2, then 8, हाँ फोर्थ, क्यों क्या है फोर्थ का, क्या लिखा? 8, अच्छा वो नीचे है ना, वो डिवीजन में है, 32 रेज टू 1/5, तो 4/2 आएगा, राइट? ठीक है, फिर फिफ्थ में क्या आएगा? 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और वो 1/3 तो है, और 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और उसको भी 1/3 है क्योंकि दोनों को है, तो 3 3 दोनों को जगह पे आंसर हो गया, 2/3 शुड बी द आंसर, आया? फाइन, सिक्स्थ, हाँ करेक्ट है, और 2, अब वो रेस टू -1/8 है, वो नीचे जाएगा क्योंकि पॉजिटिव पावर करना है, तो 256 क्या आता है? 2 रेस टू 8, क्योंकि 4 8 16 32 64 128 एंड 256, so 2 रेस टू 8 रेस टू 1/8, 8 8 कैंसिल होकर इट विल बी 2/2, so 1 is correct, एंड लास्ट ये सेवेंथ, अब वो ऐसा था 2 रेस टू हाफ इंटू 4 रेस टू 3/4, so let's check, 2 रेस टू हाफ, 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रेस टू 3/4, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल होगा, 1 2, so it will be 2 रेस टू हाफ इंटू 2 रेस टू 3/2, मतलब 2 रेस टू हाफ प्लस 3/2, तो 1/2 प्लस 3/2 मतलब कहने से 4/2 आएगा, तो नन ऑफ दिस कैसे आ रहा था? 2 रेस टू 2 आता है ना, 4 आता है फाइनल आंसर, देखो क्या हुआ, देखो एक बार, तो पॉजिटिव इंटीजर वुड बी करेक्ट आंसर। क्या करती हुई थी? क्वेश्चन, हाँ, 2 रेस टू हाफ इंटू 4 रेस टू 3/4, ओके कर लो ट्राई। हाँ ये देखो, क्वेश्चन में 2 रेस टू 1/2 है और 4 रेस टू 3, हाँ 3/4 है, तो 2 स्क्वायर किया मैंने उसको, दोनों का बेस अलग है ना, 2 और 4 है बेस, ओके समझाए, फाइन, ओके, देन 8 से लेके 14 तक, टेक दीज एज होमवर्क फॉर टुडे, ओके, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्काइप से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो डायरेक्टली,
उसमें से क्वेश्चन 13 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी के सब तो एकदम इजी है। 13 में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। लिया स्क्रीनशॉट? लिया के स्क्रीनशॉट? एंड ये भी ले लो 15 to 22। ओके, मतलब क्या होमवर्क है टिल क्वेश्चन 22? हाँ, मतलब क्वेश्चन 8 to क्वेश्चन 22 सब होमवर्क ट्राई करो, क्योंकि वैसे भी लेक्चर मंडे को है मैथ्स का, तो 22 तक सब लो होमवर्क, 22 तक। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंड। हाँ अच्छा, क्यों मोबाइल क्यों? अरे हाँ, तो कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस। आया क्या? हाँ ठीक है, तो 8 to 22 होमवर्क करो, नेक्स्ट लेक्चर में विल चेक, एंड देन ये फिनिश करके हम लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। ओके फाइन, ठीक है, तो लेट्स स्टॉप फॉर टुडे। बाय।